Good morning, dear students. I hope you are fine and doing well. So, you can see on the display the title of the poem. So, we are going to study about one poem. The title is On the Grasshopper and Cricket. Okay, so it is about an insect. Okay, how the insect actually help to the nature, or how actually insect make a lovely nature or a musical nature or give sound to the nature. Okay, or how their sound actually break the silence of the nature. All these things we will actually learn through this poem. It is an amazing poem. You will enjoy a lot. So before going to start this poem, I would like to actually describe or say something about the poem. That is, unlike the ant and the cricket which tells the story. So ये ant and cricket की story है. This is a nature poem. So as you know, it is about the nature, or it is regarding about the natures. Okay, how the actually nature is going on, what are the changes actually come across in the nature due to some accidents, due to some insects and all. Okay, in it, the grasshopper and cricket do not appear as characters in a story. So यहाँ पर ये जो grasshoppers and cricket है वो उस character की तरह नहीं है. Rather, they act as a symbol. Okay, so यहाँ पर आपको इस poem में जो grasshopper और cricket दोनों यहाँ पर mention किया है इस poem में. Okay, so वो character नहीं है, लेकिन वो symbolize किया गया है. So उनका जो symbolize है किस तरह से किया गया है वो हम देखेंगे. Each suggesting something else, यानी दोनों ही कुछ ना कुछ हमें सजेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ हमें इंडेक्ट करते हैं, इंडिकेट करते हैं. Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summers and winter in a never-ending song who sings the songs. यानी किस तरह से समर और विंटर ठीक है चलते हैं, और उनका जो म्यूजिक है, सॉन्ग है, साउंड है, वो कैसे चलता है और कौन सॉन्ग गाता है, वो सब हम देखेंगे. सो एक्चुअली दिस पोएम इज अ पेट्रार्कन सोनेट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट व्हाट इज पेट्रार्कन सोनेट, एंड देन वी विल मूव टू द पोएम. सो पेट्रार्कन सोनेट actually it's derived the name from the Italian or Italic sonnet, Italian sonnet. Okay, and this name given after the Italian poet. So इसमें total 14 lines होती है. That you all know. Okay, sonnet has a 14 lines. Remember. Okay, and at the end there is a 2 lines. It's called couplet. But here this is a Petrarchan sonnet. So it is different. Okay, so it is divided into 2 parts. यानी आपको अब अगर लाइन्स को गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो पेट्रार्कन सोनेट है वो डिवाइड किया गया है. सो डिवाइड करके उसके 2 नाम होते हैं, 2 पार्ट पड़ते हैं. ठीक है ना. फर्स्ट का नेम क्या है? ऑक्टेव. यानी जो पहली पोएम में जो पहली लाइन है, 8 लाइन है, उसे ऑक्टेव कहा जाता है. रिमेंबर दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड सस्टेट. तो सस्टेट में 6 लाइन होती है. ओके, 8 एंड 6 कितनी हुई? 14 हो गई. सो ये पेट्रार्कन सोनेट्स की आइडेंटिफिकेशन है. अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज पेट्रार्कन सोनेट, उसमें कितनी लाइन होती है, उसमें कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, तो आपको बताना है कि उसमें 2 पार्ट होते हैं. ऑक्टेव यानी 8 लाइन्स होती है, और सस्टेट यानी 6 लाइन होती है. तो टोटल 14 लाइन्स होती है. इसे पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं. और पेट्रार्कन सोनेट इटालियन सोनेट के पर से आया है, और इटालियन सोनेट यानी इटालिक पोएम के नाम से रखा गया है. सो रिमेंबर दिस. एंड ऑक्टेव क्या हमें बताता है? सो ऑक्टेव एक्चुअली इंट्रोड्यूस द थीम और द प्रॉब्लम. ओके, यानी जो ऑक्टेव यानी जो पहली जो 8 लाइन है वो हमें क्या बताती है? प्रॉब्लम और द थीम ऑफ दिस पोएम. सो ये आपको याद रखना है. और उसके बाद जो सस्टेट यानी जो 6 लाइन है वो रेजोल्यूशंस फॉर द पोएम्स, यानी पोएम का वो रेजोल्यूशंस बताता है, और द सॉल्यूशंस, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट. So it is everything about this poem. Now we will go to the poem, how actually grasshoppers and cricket are symbolized in this poem. So we'll see.
So this poem is fine piece of patriarchal sonnet. Okay, the famous poet John Keats. यानी ये जो पोएम है वो किसने लिखी है? जॉन पोइट ने लिखी है. ओके, जॉन किट्स ने लिखी है. यानी इट इज इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द नेचर. और वो उन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से गेन किया है? तो नेचर से. नेचर में से उन्हें इंस्पिरेशन मिला है और उन्होंने नेचर के बारे में ये सब लिखा है. नाउ यू कैन सी द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. आप जानते हो कि अर्थ की जो पोएट्री यानी अर्थ कभी डेड होता ही नहीं, वो हमेशा अलाइव ही होता है. आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, आप अगर देखेंगे बारीकाई से, तो आपको लगेगा कि क्या नेचर ऑलवेज अलाइव होता है. When all the birds are faint with the hot sun and hide in the cooling trees, a voice will run. आप जानते हैं कि समर्स टाइम पे बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, नेचर जो क्रिएचर्स हैं, वो छिप जाते हैं कहीं कूलिंग यानी जो ठंडी जगह है ट्रीज के अंदर, ठीक है ना, कहीं कोने में, क्योंकि बाहर तो बहुत ही गर्मी होती है उस टाइम पर. लेकिन फिर भी अ वॉइस विल रन, यानी उस टाइम पर जो बर्ड्स सिंगिंग नहीं करते, लेकिन फिर भी नेचर में म्यूजिक चलता है, नेचर में साउंड फिर भी होता है. फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मूव मेड. ओके, फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट न्यू मूव मेड यानी हेड्स. ओके, हेड्स यानी फेंस और बाउंड्री. हेड्स यानी जो प्लेस होता है उसकी पर्टिकुलर बाउंड्रीज होती है. ओके, सीमा होती है. वहाँ से लेकर ओके जो फ्रेशली माउंटमेन मीन्स जो माउंटमेन मीन्स व्हाट, माउंटमेन मीन्स जो फ्रेशली जो कट किया हुआ पार्क है, ओके, ग्रीन से, वहाँ से लेकर बाउंड्रीज तक उसकी वॉइस गूंजती रहती है. दैट इज द ग्रेस्पर्स. ओके, और वो किसकी वॉइस होती है, किसका साउंड होता है? वो ग्रेस्पर्स का. ही टेक्स द लीड इन समर्स लग्जरी. ओके, यानी उस टाइम पर ओनली, यानी समर टाइम पर जब ऑल द क्रिएचर्स एक्चुअली टेकिंग रेस्ट, ओके, एंड नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग और म्यूजिक एंड नॉट मेकिंग एनी नॉइज. ओके, एट दैट टाइम ओनली ग्रेस्पर इज मेकिंग actually a beautiful atmosphere with his sweet voice और ओके साउंड्स, और वो अच्छी तरह से लाइफ जीता है उस टाइम पर. ही हैज नेवर डन, यानी वो बस कंटिन्यूसली बोलता ही रहता है, गाता ही रहता है, आवाज़ करता ही रहता है. विद दिस इज डिलाइट, यानी खुशी से. ओके, फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड. यानी जब वो थक जाता है, ओके, विदाउट टायरलेस, यानी पहले तो वो गाता ही रहता है विदाउट टायरलेस यानी थके बिना, लेकिन उसे जब लगता है कि वो थक गया है तो वो रेस्ट लेता है. कहाँ पर? जो वीड यानी जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वहाँ पर वो शेल्टर लेता है, यानी रेस्ट लेता है. सो आपने देखा कि किस तरह से ग्रेस्पर अपनी जो ड्यूटी है वो कर रहा है. सो द पोएट सिंबलाइज द ग्रेस्पर एज हॉट समर. यानी इस पोएम में आप देखेंगे कि यहाँ पर पोएट ने सिंबलाइज किया है, तो ग्रेस्पर को हॉट समर के लिए सिंबलाइज किया है और क्रिकेट को सिंबलाइज एज अ कूल विंटर. ओके, विंटर के लिए किसको सिंबलाइज किया है? क्रिकेट को. और ग्रेस्पर को सिंबलाइज किया है एज अ हॉट समर. The poet John Keats celebrates the music of the earth. He finds beauty in hot summers as well as in the cold winter. यानी जो पोएट है वो दोनों ही सीजन में जो एटमॉस्फेयर की जो रौनक होती है, जो आनंद होता है वो लेते हैं. ठीक है ना? कैसे? तो समर्स में किसका वॉइस होता है? ग्रेस्पर्स का वॉइस होता है. ग्रेस्पर सिंगिंग करता है और नेचर को बहुत ही ब्यूटीफुली लवली प्रेजेंट करता है. ठीक है ना? और उसके बाद आते हैं विंटर. तो विंटर में कौन? क्रिकेट. ओके, सॉन्ग गाता ही रहता है और एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह से रोमांचित और एकदम बहुत ही अच्छा बढ़िया बना देता है. सो पोएट एक्चुअली एंजॉइंग इन बोथ दिस सीजन, ओके, ड्यू टू दिस टू इन फैक्ट. द पोएट सेज दैट द म्यूजिक ऑफ नेचर और अर्थ इज ऑलवेज अलाइव. ठीक है ना? हमने आगे भी बात कर दी है कि जो म्यूजिक है, जो साउंड है, ठीक है ना, अर्थ का, वो ऑलवेज अलाइव होता है. ठीक है ना? स्टार्टिंग होता है ऑलवेज अलाइव यानी जिंदा होता है, लेकिन उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, उसे एंजॉय करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए. आप अगर नेचर के साथ बैठोगे, बात करोगे, उसे ऑब्जर्व करोगे, सारी चीज़ें देखोगे एक एक बारीकाई से, तो आपको पता चलेगा कि नेचर का क्या इम्पोर्टेंट है और नेचर से हमें क्या मिलती है. अगर आपने कई बार देखा है कि
जब भी आप गार्डन या कोई नेचर, ठीक है ना, जंगल या फॉरेस्ट में आप जाओगे और वहाँ पर आंखें बंद कर बैठोगे तो आपको इतनी शांति और जो वॉइस आएगी, तरह तरह की वॉइस आपको सुनने को मिलेगी और उससे आपके मन को शांति मिलेगी। लेकिन आज के टाइम पर किसके पास टाइम है नेचर को एंजॉय करने में। यहाँ पर ये पोएट हमें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि नेचर को टाइम दो। What is the importance of nature? How actually we are getting happiness from the nature? Everything actually talking. ओके, सो जो ग्रासपर है ओके वो कंटिन्यूसली सिंगिंग करता रहता है और जो अदर इंसेक्ट है वो टेकिंग रेस्ट। ओके, सो ये पोएम में हमने ये लाइन कंप्लीट की है। नाउ so during the hot summer all the singing birds are tired. ओके, जो जितने भी जो बर्ड्स हैं वो टायर्ड यानी थक जाते हैं समर्स के टाइम, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही हॉट होता है, ठीक है ना। जो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा गर्मी रहती है उसकी वजह से जो क्रिएचर्स हैं, जो बर्ड्स हैं सिंगिंग वाले, वो थक जाते हैं। एंड टेक रेस्ट अंडर द सैडी ब्रांचेस, यानी जो सैडी ब्रांचेस है वहाँ पर वो लोग रेस्ट करते हैं और ब्रीथ। बट इवन दे डोंट सिंग द सॉन्ग ऑफ नेचर गोज ऑन, फिर भी वो सॉन्ग नहीं गा रहे हैं, फिर भी नेचर में म्यूजिक, नेचर में साउंड, लवली स्वीट वॉइस, स्टिल इट इज देयर बिकॉज ऑफ ग्रासपर। ड्यू टू द ग्रासपर वॉइस ही कीप सिंगिंग टायरलेसली, यानी जो ग्रासपर है वो थके बिना रुके बिना वो कंटिन्यूसली गाता रहता है। A grasper carries on the duty of singing the everlasting song of nature. During summer, he is fun-loving and cheering creatures and is never done with his delight. यानी जो ग्रासपर है वो उसकी जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ही हाई लेवल पर होती है और वो कंटिन्यूसली गाता रहता है, एंजॉय में होता है, मौज में होता है पूरी तरह से कंप्लीटली, ठीक है ना। ब्लाइंडली ही इज इन अ हैप्पी मूड। बट नाउ दैट इज द ग्रासपर, ही टेक्स द लीड इन समर्स लग्जरी, यानी समर्स लग्जरी है उसमें कौन लीड करता है? ग्रासपर लीड करता है। ही हैज नेवर डन विद हिज डिलाइट, उसने अपनी जो डिलाइट है उसे नहीं छोड़ा। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन ही रेस्ट एट हिज, यानी वो थक जाता है तब वो कोई प्लांट के बेनिस पर वो थोड़ा आराम कर लेता है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, यानी जो अर्थ की जो सामने म्यूजिक है वो कभी स्टॉप नहीं होती। इट गोज ऑन अ लॉन्ग विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट हैज लॉस्ट साइलेंस, यानी जब विंटर की इवनिंग होती है तब फ्रॉस्ट की वजह से जो साइलेंस होता है, फ्रॉम स्टोन दैट फील्स द क्रीकी सॉन्ग इन warmth increasing ever and seems to one in round is half lost, the graspers among some grizzly hills. Yani, a grasper carries on the duty of singing the everlasting song of nature during summer. He is fame-loving and cheerful creature, and is never done with his delight. But the earth has its own way of expressing pleasure and joy. यानी अर्थ के पास उसकी जो एक्सप्रेशन है, जो जॉयस और प्लेजर की, ठीक है ना, स्प्रेड करने की, वो अलग है, वो कंटिन्यूसली ऑन ही रहती है, ठीक है ना। लेकिन उसे आपके पास उससे सुनने का टाइम होना चाहिए। The song of cricket can be heard which breaks the silence. यानी हमें देखा कि जो विंटर में जो साइलेंस, ठीक है, साइलेंस है पूरी तरह, लेकिन जो क्रिकेट का जो वॉइस है वो उस साइलेंस को पूरी तरह से तोड़ देता है। He sings from the stones, वो कहाँ से? कोई stones यानी पत्थर में, ठीक है ना, पत्थर के वो बाहर पत्थर के नीचे रहता है और वहाँ से वो सिंग करता है। Not from the trees, okay, trees से नहीं। His songs appear to be increasing the warmth every moment people are able to, और उसकी जो साउंड, उसकी म्यूजिक की इतनी साउंड ज़्यादा लाउडली होती है कि अगर मान लो कि जो लोग हैं, यानी आप घर में बैठे हो तब भी आपको उसकी वॉइस है जो सुनाई देगी, ठीक है ना। सो वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक उसकी वॉइस सुनाई देती है। सिटिंग इन अ वेयर हाउस वी कैन से दैट ग्रासपर्स एंड क्रिकेट टू थिंग्स इंसेक्ट एटोन अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, यानी हम इस पोएम से कह सकते हैं कि ग्रासपर और जो क्रिकेट है वो बहुत ही अच्छी तरह अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा रहे हैं। यानी अदर जो क्रिएचर्स इंसेक्ट है वो टायर्ड है, थक गए हैं ड्यू टू हॉट
सीजन, बट जो क्रिकेट और ग्रासपर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभा रहे हैं और म्यूजिक दे रहे हैं नेचर को, बहुत ही रोमांचित, बहुत ही अच्छा नेचर को अलाइव करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. So the seems to one in Drowny's half lost the graspers among some gracefully hill. तो यहाँ पर दिया गया है ड्राउनीज यानी पूरी तरह से फीलिंग ऑफ बीइंग स्लीपी. ओके, ड्राउजी. ओके, ड्राउनीज यानी जो ड्राउजी वर्ड है उसके ऊपर से ड्राउनीज आया. ओके, फीलिंग ऑफ स्लीपी, थोड़ा नींद में होना और पूरी तरह से नींद में होना. हाफ लोस्ट द ग्रासफुल्स अमंग सम ग्रेसी हिल्स. ग्रेसी हिल में वो अपनी गुंजाता है, सिंगिंग करता रहता है. सो व्हाट एक्चुअली यू लर्न फ्रॉम दिस poem? Okay, what you understand from this poem, or what we can take as a conclusion of this poem at the end of this poem? So it's actually suggests, or the poet actually suggests us that the poem teaches us. Okay, what actually this poem teaches us? The poem teaches us that we shall be joyful and pleasant no matter what are the situation in our life. यानी हमारी लाइफ में हमें खुश और हैप्पी, बहुत ही एक्साइटमेंट में ही रहना चाहिए. डजेंट मैटर इन विच ट्रबल और डजेंट मैटर इन विच प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स आर गोइंग इन योर लाइफ. डजेंट मैटर इन विच सिचुएशन you are, but you have to maintain a state of mind in a happy mood. It depends on you how you actually dealing with the problem, how you actually dealing with the situations, how you actually handle the situations. It depends on persons, it depends on you. So this one actually suggesting us that you have to be happy, you have to be strong, you have to be confident, pleasant, joyous, okay, in any situation in your life. That is the poem actually suggesting us, the poet suggesting us through this poem in our life. With this attitude, we can easily overcome all the obstacles in life. अगर इस तरह से आप जियोगे, अगर इस तरह का एटीट्यूड आपकी लाइफ में रखोगे, ठीक है ना, तो आप किसी भी ऑब्स्टिकल में से आसानी से इजीली you will come out from the situation, you will come out from the obstacle. Okay, or you will able to fight with that obstacles during while coming in your life. So this poem actually suggesting us be strong, be happy, doesn't matter whatever the situation. So I hope, dear students, you understand everything. Thank you so much. Have a nice day.